Assalamualaikum class 6. This is Sir Khalid Salim, and today we are going to start the chapter Perseus and the Gorgon. And this is a story that is a mythological story. It is based on ancient myth. Myth का मतलब होता है something that is not validated or that is not a fact. It is man-made story. Okay. Uh, Before starting our chapter, we are going to go to the words that we are going to find in this chapter. Okay, the words to know: banquet. The first one is banquet. Okay, it is a special meal for lots of people. So, for example, when we would be making the sentences of these words, so banquet आपको पता होना चाहिए कि ऐसा meal जो कि ज़्यादा लोगों के लिए होता है. It can be a wedding banquet as well. मतलब ठीक है, like you can say कि जी I was invited to a wedding banquet. मतलब शादी पे जो खाना था मुझे उस पे बुलाया गया था. The next one is constellation. It means a group of stars forming a recognizable pattern that is traditionally named after what it apparently looks like or a mythological figure. So constellation basically it's a group of stars. Okay. Uh, हमारा जो constellation है it is called Milky Way constellation. ठीक है. So it's a noun. Banquet भी noun था. Cunning. Skill in using trickery to get something. Cunning means कि आप बहुत ज़्यादा चालाक हैं. You are excessively clever, and it is an adjective. Okay. Disgrace. It means loss of reputation or reputation and और रिस्पेक्ट. डिस्ग्रेस का मतलब होता है इन अदर वर्ड शेम, शर्मिंदगी. ठीक है. कोई चीज़ जो है वो कॉज ऑफ शेम हो सकती है आपके लिए. फॉर एग्जांपल चीटिंग इज़ अ डिस्ग्रेस. ओके, चीटिंग जो है वो एक शेमफुल एक्ट है. ठीक है, इट्स अ डिस्ग्रेस. ferocious it means widely fierce, cruel और violent. ओके. ferocious का मतलब होता है बहुत ज़्यादा एंग्री, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, वायलेंट या क्रूल. So it can be used in sentences where you might say that a lion is a ferocious animal. ठीक है, कोई ऐसा एनिमल जो बहुत ज़्यादा वायलेंट हो. ठीक है. माई फ्रेंड हैज़ अ ferocious dog भी आप कह सकते हैं. सो दिस इज़ एन एडजेक्टिव. ओके, इट्स गोइंग टू कम विद अ नाउन. ओके, गैग्ड. गैग्ड का मतलब होता है चोक्ड और रेच्ड. रेच्ड का मतलब होता है कि आपको जिस वॉमिटिंग की फीलिंग आती है तो यू स्टार्ट रेचिंग. ओके. चोक का मतलब होता है कि आप जो हैं बेसिकली यू आर अनएबल टू से समथिंग. ओके. सो आप कह सकते हैं, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा दैट किडनैपर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि दे पुट समथिंग इन योर माउथ. वो आपको गैग कर देते हैं ताकि आप जो हैं वो कुछ बोल ना सकें. ठीक है. और रीच्ड का भी होता है, मतलब आप कह सकते हैं इट्स अ वर्ब एक्चुअली. यू कैन से कि सम बैड स्मेल मेड यू गैग्ड. ठीक है. अच्छा जी, इसके बाद हिडियस. हिडियस का मतलब होता है एक्सट्रीमली अगली. इट्स अ एडजेक्टिव. सो यू कैन से अबाउट इट like this के you saw a hideous creature last night, or someone did a very hideous act. ठीक है, extremely ugly भी कह सकते हैं. nymph. nymph का मतलब होता है a young and beautiful mythological spirit of nature. It's basically used for a lady who is in the form of nature and that lives in rivers or someplace like that. Okay. इसके बाद petrified. इसका मतलब होता है you're so frightened that one is unable to move, or in other words terrified. petrified का मतलब होता है बहुत ज़्यादा डर गए हैं. ठीक है. So petrified is an adjective. Okay, you can say I was petrified when I saw the snake. ठीक है. So you can make sentences like that. Tyrant means someone a cruel and oppressive ruler. Oppressive का मतलब होता है कोई बहुत ज़्यादा आपको दुबाता है, आपको oppress करता है. So it's a noun, and you can say you can make a sentence like this that the new king is a tyrant. ठीक है, जो नया बादशाह है वो बहुत ज़्यादा क्रूल है. So we are going to encounter certain names in our story. So let's go to that pronunciation guide. Danae. Okay, Danae. Perseus, Polydectes, Medusa, Andromeda, Dictys. Okay, so this is the pronunciation of these names, and these are Greek names.
So let's start with our story. Okay. In the northern skies, if you look up on a clear night, you can see a constellation of stars called Perseus. The constellation is named after a Greek hero. So the name Perseus, it's basically based on the on a is a name based on a constellation of stars, and it is named Perseus. Okay, so it is named after a Greek hero. When he was a baby, Perseus and his mother Danae were sent away to an island called Sirophos. A kind man named Dictys allowed them to live on his land. So Perseus and his mother, they were sent away to an island called Sirophus, and there was a kind man named Dictys who allowed them to live on his land. Okay. Now Dictys has a brother Polydictys, who was the Dictys' brother. Polydictys was the king of the island. Polydictys was a cruel and evil tyrant. So अब Dictys का भाई है, ठीक है, and his name is Polydictys, and he is actually the ruler and the king of the island where Perseus and his mother Danae has been sent away. Okay, and Polydectes, we come to know that he is a very cruel, oppressive, and an evil tyrant. Perseus grew up into a strong young man. He worked hard on the land and was very protective of his mother. So he went there as a baby and he grew up on that land, and he became a very strong man. Okay, and he worked hard on the land and he was very protective of his mother. He was very caring about his mother. Okay, he did not want any harm to befall on his mother. Okay. One day, the mean king saw Perseus' mother and decided that he wanted to marry her. He kept trying to meet Danae, but Perseus did not like or trust the king, so he used his cunning to keep the king away in order to protect his mother. So he used trickery to keep the king away, okay, from his mother, so that he may protect his mother. And it all started when one day Polydectes, he saw Danae, who is the mother of Perseus, but Perseus did not like this king and he wanted to keep his mother safe from this person. Okay, the king became angry because he was used to getting whatever he wanted. So he was a tyrant, and whatever he wished to have on the island, he usually got it. But in this case, he got very angry because Perseus was not letting uh, Polydectes marry his mother. So he said, "How can I get rid of this irritating man?" thought Polydectes. He plotted to send Perseus away in disgrace so that he would never return to Sirophus. So he thought to himself, उसने किंग ने सोचा कि मैं इस बंदे से कैसे अपना पीछा छुड़ाऊं. तो उसने एक प्लान बनाया जहाँ पे वो पर्सियस को जो है वो निकाल देगा इन डिस्ग्रेस. डिस्ग्रेस का मतलब होता है इन शेम, ठीक है, ताकि वो कभी भी जो है शर्मिंदा होके कभी इस आइलैंड में सिरोफस में ना दोबारा कदम रख सके. Perseus knew that he had angered Polydectes, so he was surprised to get an invitation to a banquet. So Perseus, he came to know, he knew that he has angered Polydectes, and he was extremely surprised when he got an invitation card inviting him to a banquet. Banquet is a large meal. Okay, the invitation made it clear that the king expected everyone to bring him a horse as a present, and on the invitation card it was mentioned that every guest who comes to this banquet to eat food, he is supposed to bring a present for the king, and that present should be a horse. Perseus did not have a horse and he could not afford to buy one. What shall I do? He wondered. So उसने सोचा अब कि मैं क्या करूं, मतलब मेरे पास कोई हॉर्स भी नहीं है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं कोई हॉर्स खरीद सकूं. It would be disrespectful to refuse the invitation, so he would have to go back to the banquet without a गिफ्ट. और ये डिसरिस्पेक्टफुल होता कि वो रिफ्यूज़ करता, उस क्या कहते हैं इनविटेशन पे ना जाता, और ये एक बदतमीज़ी समझी जाती. तो बेसिकली उसको अब जाना ही था बैंक्वेट पे, लेकिन बगैर किसी गिफ्ट के. ही होप दैट द किंग वुड बी अंडरस्टैंडिंग, और उसने सोचा कि किंग जो है वो मेरी सिचुएशन को समझेगा. When Perseus arrived at the banquet, he realized that the king was not going to let him off. Everyone was lined up, and one by one they gave their gifts to the king. When it came to Perseus' turn,
When it came to Perseus' turn, the king spoke loudly. Ha, Perseus, where have you hidden the horse you have got for me? So, actually, when he arrived at the banquet, he came to know that the king was not so understanding and that he had everyone lined up. एक लाइन उसने बनाई हुई थी ताकि वो अपने लोग जो बैंक्वेट पे आए थे, गेस्ट आए थे, ताकि वो अपने प्रेजेंट्स जो हैं वो किंग की खिदमत में पेश कर सकें. सो व्हेन इट वाज पर्सियस टर्न एंड ही डिड नॉट हैव अ हॉर्स, so the king he said, "Ha, that you did not bring anything for me." The other guests laughed along with the king. One said, "Oh, Perseus, don't you know our customs?" तो दूसरे जो दो गेस्ट थे, मेहमान थे, वो हंसे किंग के साथ. और एक मेहमान ने कहा कि तुम्हें नहीं पता ये हमारा रिवाज है कि जब भी हमें इनवाइट किया जाता है किंग की तरफ, तो वी आर सपोज टू ब्रिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रेजेंट फॉर द किंग. Perseus felt embarrassed. अब उसको शर्मिंदगी महसूस हुई. Everyone in the great hall was looking at him. Without thinking about the consequences, he made a rash promise. अब क्या हुआ कि हर कोई उसे देख रहा था, वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो रहा था. बगैर सोचे समझे कि आगे क्या होगा, उसने गलती से एक रेकलेस, रैश का मतलब होता है रेकलेस, मतलब डन विदाउट एनी केयरफुल थिंकिंग और प्लानिंग. तो उसने एक रैश प्रॉमिस कर दिया. किंग Polydictes, I have no gift for you today, but I promise that I will bring you another gift. So he said that king, मेरे पास आपका कोई गिफ्ट नहीं है, लेकिन मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेकर आऊँगा. वट एवर यू लाइक, जस्ट नेम इट एंड आई विल ब्रिंग इट. एंड ही इज़ बेसिकली आस्किंग द किंग, वट एवर यू लाइक, जस्ट नेम इट एंड आई विल बी ब्रिंगिंग द गिफ्ट टू यू. The king looked delighted. He knew he could use this opportunity to get rid of Perseus. तो वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आया किंग उसकी ये बात सुन के, और उसको पता था कि वो इस चांस को जो है यूज़ कर सकता है पर्सियस से छुटकारा हासिल करने के लिए. He said, दैट इज़ काइंड पर्सियस, ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत जनरस हो तुम पर्सियस. आई नो एग्जैक्टली व्हाट आई वांट, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए. ही स्माइल्ड मेनेसिंगली. मेनेसिंगली का मतलब होता है कि आप यू आर एक्चुअली through your attitude are showing that you cause harm to the other person. Menacingly, bring me the head of Medusa. So he asked Perseus that bring me the head of Medusa. Now, who's Medusa? We're going to come to know about it. Everyone gasped. Perseus nodded and bowed. It shall be done, he said confidently, and then he went to his seat at the banqueting table. He tried hard to keep his face from showing how worried he felt. So हर किसी ने जो है अपना सांस लो रोक लिया, ठीक है. लेकिन पर्सियस ने क्या किया, उसने अपना सर हिलाया अफर्मेटिवली, एंड ही बाउड. बाउड का मतलब होता है कि उसने अपना सर झुका दिया किंग के सामने. उसने कहा कि जी ये हो जाएगा. लेकिन क्या हुआ कि वो अपनी जब सीट पे बैठा तो उसने बहुत ज़्यादा अपना फेस को कंट्रोल करने की कोशिश की, क्योंकि ही वॉज़ वेरी वरिड. जो किंग ने उसको काम कह दिया कि मेडूसा का हेड लेकर आओ. ओके, द होल किंगडम लिव्ड इन फियर ऑफ मेडूसा एंड हर सिस्टर्स. तो जो सारी किंगडम थी किंग की, वो मेडूसा के खौफ में रहती थी और उसकी बहनों के खौफ में रहती थी. They were Gorgons, monstrous, terrifying creatures who lived in a cave. अब वो कौन थे मेड्यूसा? बेसिकली they were Gorgons, ठीक है. एक Perseus and Gorgons के हिसाब का टाइटल है, तो ये Gorgons है. ओके, they were monstrous, terrifying creatures. Terrifying creatures का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खौफ आता था उनसे. Who lived in a cave, जो कि गार में रहते थे. एंड प्रेड ऑन एनी वन हु केम नियर देम, और बेसिकली शिकार करते थे उन लोगों का जो कि गलती से उनके करीब आ जाते. इंस्टेड ऑफ हेयर दे हैड स्नेक्स ग्रोइंग आउट ऑफ देयर हेड्स, और बाल नहीं थे उनके सर पे, बल्कि उनके सरों से सांप उग रहे थे. अनलाइक हर सिस्टर्स, मेडूसा वॉज मोर्टल एंड कुड इन थ्योरी बी किल्ड. लेकिन अपनी सिस्टर्स की तरह मेडूसा नहीं थी. वो क्या थी कि वो मोर्टल का मतलब होता है द वन हु एक्चुअली डाइज, ठीक है. तो मेडूसा की सिस्टर्स जो थी, वो मेडूसा जो थी एक्चुअली वो अपनी सिस्टर्स की तरह नहीं थी, और वो बेसिकली मारी जा सकती थी. इन रियलिटी नो वन हैड एवर कम क्लोज टू बीइंग एबल टू डिफीट हर. लेकिन सच्चाई तो ये थी कि कोई भी इसके मतलब उसको हराने के कभी भी करीब नहीं आया. एनी वन हु लुक्ड डायरेक्टली एट मेडूसाज फेस वॉज इंस्टेंटली टर्न टू स्टोन. और कोई भी जो है अगर मेडूसा के चेहरे को देखता था तो फ़ौरन से जो है वो स्टोन का बन जाता था. हाउ वुड अ यंग मैन बी एबल टू डिफीट हर. तो किस तरह एक जवान आदमी जो है वो मेडूसा को हरा सकता है. द नेक्स्ट डे बिफोर ही सेट ऑफ, Perseus spoke to his mother, "Don't go.
शी begged him. सो रवाना होने से सेट ऑफ का मतलब होता है व्हेन यू गो ऑन अ जर्नी, ठीक है। सो अगले दिन जो है जर्नी पे जाने से पहले उसने अपनी मदर से बोला, सॉरी उसकी मदर को उसने अपनी माँ से अम्मी से बात की, तो उसकी मदर ने उसको कहा कि डोंट गो, और उसने बैक किया। आई मस्ट गो सेट पर्सियस, इट इज़ द ओनली वे टू बी फ्री फ्रॉम पॉलीडेक्टिस। उसने कहा जी मुझे जाना पड़ेगा और यही रास्ता है कि हम लोग फ्री हो सकते हैं इस पॉलीडेक्टिस जैसे क्रूल किंग से। Danae wished Perseus luck and watched him leave. She prayed for his safety. So, मदर जो थी शी वॉज़ वेरी होपफुल एंड शी प्रेड फॉर हिज लक कि ऐसा हो कि वो परसियस को मेडूसा को मार दे, और उसके लिए उसने दुआएं की। Zeus, Hermes and Athena were three powerful people in Seriphos. They had seen what had happened at the party. तो Zeus, Hermes and Athena जो थे वो basically they are also three mythological figures in ancient Greek myths, and they were also at the party and they saw what had happened. They wanted to help Perseus because Polydectes was being unfair. सो बेसिकली पर्सियस की हेल्प करना चाहते थे ये तीनों, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये अनफेयर हो रहा है, इसने जो बात की है ये बिल्कुल लॉजिकल नहीं है और बिल्कुल अनफेयर है। दे अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ हिम, ज़ियस गेव हिम अ स्पेशल सोर्ड एंड अ हेलमेट दैट वुड मेक हिम इनविजिबल। तो ज़ियस ने जो है उसको एक सोर्ड दी है और एक हेलमेट दी है जो कि उसको इनविजिबल कर देगा। इनविजिबल का मतलब होता है कि आप आंखों से ओझल हो जाते हो, ठीक है, यू आर नॉट विजिबल टू अदर पीपल। Hermes lent Perseus a pair of winged sandals to fly. तो Hermes ने बेसिकली Perseus को दिए जूते, सैंडल्स दिए जो कि फ्लाई कर सकते थे। Athena gave him a polished shield, और Athena ने जो है उसको एक polished shield दी थी। Perseus was grateful. Thank you, he said. आई विल डू माई बेस्ट बी वर्दी ऑफ योर गिफ्ट। तो पर्सियस बहुत ज़्यादा थैंकफुल था कि उन्होंने उसकी इतनी मदद की, और उसने कहा कि मैं जो हूँ अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस काबिल बनूँ आपके इन गिफ्ट्स के। यूज़ योर ब्रेन एज वेल एज योर स्ट्रेंथ, पर्सियस वार्न्ड एथेना। अब उसने कहा कि अपनी सिर्फ आपने स्ट्रेंथ ताकत नहीं यूज़ करनी बल्कि अपना दिमाग भी यूज़ करना है। एथेना ने उसको वार्न किया, ख़बरदार किया। यू विल नीड अ स्पेशल बैग टू कैरी मेडूसाज हेड, और उसने कहा कि तुम्हें एक स्पेशल बैग चाहिए होगा कि तुम मेडूसा का हेड कैरी कर सको। वेयर विल आई गेट दिस बैग पर्सियस? Go to the northern shore, said Athena. There you will find ancient grey witches. अच्छा, now he's Athena जो है वो वॉर्न कर रहा है इसको पेर्सियस को कि तुमने जो है नॉर्दर्न शोर पे जाना है, और वहाँ पे बेसिकली तुम्हें एक एंशंट पुरानी जो हैं वो ग्रे विचेस नज़र आएंगी। विचेस का मतलब होता है चुड़ैलें। मेक देम टेल यू हाउ टू फाइंड द निम्स हु लुक आफ्टर द गार्डन ऑफ हेरा, बी कनिंग एज वेल एज ब्रेव। तो वहाँ पे जाके उनको फोर्स करो कि किस तरह जो है वो तुम्हें ये बैग मिल सकता है, और ये कि तुम्हें निम्स के पास जाना पड़ेगा। निम्स का यही मतलब है कि दे आर मिथोलॉजिकल फिगर्स एंड दे आर बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटीफुल यंग वुमेन। बी कनिंग एज वेल एज बी ब्रेव। सो थोड़ा सा क्लेवर भी होना है और आपने बहादुर भी होना है। Perseus made his way to the northern shore. So Perseus he started his journey and he went to the northern shore. When he came near to the cave, और जैसे ही वो केव के करीब आया है of the grey witches, जहाँ पे ये ग्रे चुड़ैलें रहती थी, ये वाली, ठीक है, दीज आर द वंस विचेस। ही क्राउच्ड बिहाइंड सम ग्रे रॉक्स। क्राउच्ड का मतलब होता है कि अपने घुटनों के बल जो है वो झुक जाना और छुपने की कोशिश करना, ठीक है। नेवर हैड ही सीन सच अ हिडियस साइट, उसने कभी भी जो है इतनी बुरी और अगली जो है कभी मंजर नहीं देखा था। साइट मीन्स मनाजिर या व्यू। The witches wore filthy, tattered grey robes which looked so much like their wrinkled grey skin that it was hard to make out their features. तो witches ने basically क्या पहना हुआ था? उन्होंने बहुत ही गंदे कपड़े पहने हुए थे। Tattered का मतलब होता है कि इधर उधर से फटे हुए थे, और ऐसे लग रहा था कि जैसे इनके कपड़े भी जो हैं, इनकी जो ग्रे स्किन थी वो रिंकल्ड थी, ठीक है। दैट इट वॉज हार्ड टू मेक आउट देयर फीचर्स, तो बड़ा मुश्किल था कि उनके वो फेस के फीचर्स रीड कर सकता या देख सकता। Perseus almost gagged as he noticed that they shared one eyeball. तो बेसिकली उसको उल्टी आने लग गई थी, वो चोक हो गया था जब उसने नोटिस किया कि ये सारे जो हैं वो एक आई बॉल जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट हैविंग आइज एंड दे आर यूजिंग दिस वन आई बॉल टू लुक अराउंड। As the witches moved around the area, they passed the eyeball to each other with their
क्लॉ लाइक रिंकल्ड हैंड। तो जब वो एरिया मतलब अपने एरिया में मूव कर रही थी विचेस, सो दे वर एक्चुअली पासिंग देयर आई टू ईच अदर, ताकि वो एरिया को देख सकें। Perseus crept closer. I hear someone coming, said one witch. तब परसियस जो है वो ऐसा ऐसा रिंग के उनके करीब आ गया, और एक विच चुड़ैल कहती कि मैं सुन सकती हूँ कि कोई हमारे पास आ रहा है। हर सिस्टर ग्रैब द आई कांट सी एनीथिंग, गिव इट टू मी, स्क्वीश द अदर वन। Just then, as the second sister was handing over the eye, Perseus lunged forward and grabbed it from her. Lunged का मतलब होता है when you jump in a forward position. Okay? So अब वो विचेस जो हैं वो आपस में कह रही कि हो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो वो एक दूसरे से अपनी आँख छीन रही हैं। तो क्या करता है कि परसियस जो है वो उनकी तरफ जंप करता है और उनकी आँख जो है उनसे ले लेता है। The witches were confused. What can you see? Demanded the first witch. Who has the eye? गिव इट टू मी, क्रोक द थर्ड विच। क्रोक का मतलब होता है कि बहुत ही हैवी आवाज़ से बोलना, अ साउंड दैट इज ब्रेकिंग एज वेल। यू हैव इट यू फूल, हिस द सेकेंड विच। Perseus spoke loudly. I have your eye. You can have it back in return for what I need. So actually he took the eye, and the witches they got confused and they are saying कि कि मेरी हमारी आंखें किसके पास हैं, किसके पास हैं। Then Perseus says कि मेरे पास तुम्हारी eye है, और बेसिकली तुम्हें तभी वापस मिलेगी जब तुम मेरी हेल्प आउट करोगी। The witches wailed and pleaded. Wailed का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना, रोना। Plead करना मतलब होता है बेग करना। Give us back our eye. Tell us what you want. और हमारी आंख हमें वापस कर दो, बता दो कि तुम्हें क्या चाहिए। टेक मी टू द निम्स ऑफ हेरा, डिमांडेड परसियस। अब उसने कहा है कि जी मुझे आपने इस निम्फ्स के पास जो हैं ये लड़कियां हैं जो नेचर की सूरत में जो हैं, तो मुझे आपने उधर लेके जाना है। द विचेस न्यू दे हैड नो चॉइस, दे लेड हिम टू द वेस्ट एंड डिलीवर्ड हिम टू हेरास गार्डन। तो अब चुड़ैलों को पता था उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, तो वो उसको वेस्ट की तरफ ले गए, मगरिब की तरफ, और वहाँ पे जो है वो हेरा के गार्डन पे उनको उसको पहुंचा दिया। पर्सियस रिटर्न देयर आई टू दैम, और पर्सियस ने वहाँ से उनको उनकी आंखें दे दी। द नेम्स वर वेरी हैप्पी टू हेल्प पर्सियस। तो जो नेम्स थी तो ये बहुत ज़्यादा खुश थी पर्सियस को हेल्प आउट करने में। दे गेव हिम अ सिल्वर नैपसैक। नैपसैक का मतलब होता है बैग। एक सिल्वर कलर का उन्होंने बैग दिया टू सेफली कंटेन मेडूसास हेड, ताकि वो मेडूसा का हेड जो है वो उसके अंदर रख सके। पर्सियस सेट ऑफ अगेन रेडी टू टैकल द गॉर्गन। तो वो दोबारा अपनी जर्नी पे रवाना हो गया और गॉर्गन्स को टैकल करने के लिए, उनको निमटने के लिए। ठीक है। लॉन्ग बिफोर ही गॉट टू द एंट्रेंस टू द गॉर्गन्स केव, और गॉर्गन्स के केव पहुंचने से पहले ही पर्सियस को पता था, न्यू ही वॉज इन द राइट प्लेस। उसको पता कि मैं बिल्कुल सही जगह पे आ गया हूँ। नो क्रिएचर्स केम नियर द प्लेस, सो देयर वाज नो नॉइस एक्सेप्ट द साउंड ऑफ हिज फुटस्टेप्स इन द क्रीपी साइलेंस। क्रीपी का मतलब होता है स्पूकी। ठीक है। सो अब उसको पता था कि यहाँ पे कोई भी नहीं आता, तो अब वो जगह भी जो थी वो बिल्कुल भी नहीं थी, सिर्फ उसके फुटस्टेप्स की साउंड थी उस जगह पे। द पेट्रीफाइड रिमेन्स। पेट्रीफाइड का मतलब होता है हॉरिफाइड, टेरिफाइड। ठीक है। रिमेन्स ऑफ मैन इन फ्रोजन पोजेज ऑफ टेरर वर ऑल अराउंड हिम। तो वो बेसिकली क्या हुआ कि उसके इर्द गिर्द लोग थे, लेकिन वो स्टोन के बने हुए थे। ठीक है। Perseus crept as quietly as possible through the forest of statues। तो वो बड़े आराम आराम से रेंगता रेंगता आप कहते हैं, मतलब बड़ा आराम आराम से जा रहा था, क्वाइटली जा रहा था ये फॉरेस्ट ऑफ स्टैचूज़ के अंदर। ठीक है। उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वो सारे स्टैचू की शेप में थे। मेकिंग हिज वे टू द माउथ ऑफ द केव, और बेसिकली वो जा रहा था गार के मुंह की तरफ। ही वेंट ऑन हिज हेलमेट, ही पुट ऑन हिज हेलमेट सॉरी, एंड स्लोली वॉकड इन। उसने क्या किया कि अपनी हेलमेट पहनी और आराम से जो है वो केव के अंदर एंटर हुआ। यूजिंग हिज पॉलिश शील्ड एज अ मिरर टू फाइंड हिज वे टू द केव, ही केम अक्रॉस द स्लीपिंग बॉडीज ऑफ द गॉर्गन। तो उसने क्या किया, उसके पास जो शील्ड थी, जो पॉलिश थी, तो उसको उसने एज अ मिरर यूज़ किया केव के अंदर एंटर होने से पहले और टर्न करने से पहले, और उसने बेसिकली वो आ गया जहाँ पे ये गॉर्गन सो रहे थे। Perseus almost gasped out loud at the reflection in his shield of Medusa's hideous face। अब उस जैसे ही उस शील्ड पे मेडूसा का फेस आया, तो उसने उसका सांस जो है वो
उसको ऐसे लग रहा था कि ऊंचा बाहर निकल के जाएगा। ही टुक अ स्लो डीप ब्रेथ टू काम हिमसेल्फ, रेज्ड हिज स्वॉर्ड एंड विद वन स्विफ्ट ब्लो, स्विफ्ट का मतलब होता है एक तेज़ी से भी कह सकते हैं, एक हार्ड ब्लो कह सकते हैं, ठीक है। ही चॉप्ड ऑफ द मॉन्स्ट्रस हेड, तो उसने क्या किया कि ज़ोर से तलवार चलाई और उसने मेडूसा का सर काट दिया। क्विकली विदाउट लुकिंग एट इट ही स्कूप्ड द हेड इनटू द नैपसैक एंड सेट ऑफ, तो बगैर देखे हुए मेडूसा के चेहरे को उसने क्या किया कि उठा के वो नैपसैक के अंदर हेड रख दिया एंड सेट ऑफ अपनी जर्नी पे रवाना हो गया। मेडूसा सिस्टर्स वोक अप एंड दे रैन आउट ऑफ द केव जस्ट बिहाइंड पर्सियस, तो मेडूसा की सिस्टर्स जो हैं वो उठ गई और वो उसके पीछे भाग गई पर्सियस के। दे कुड नॉट सी हिम बट दे कुड फॉलो द सेंट ऑफ देयर सिस्टर एंड द ट्रेल ऑफ ब्लड, अब गॉर्गन्स देख नहीं सकते थे अपनी सिस्टर को लेकिन उसको स्मेल कर सकते थे और उसके ब्लड को भी स्मेल कर सकते थे। वो ट्रेल जो था ज़मीन पे उसका खून का गिरा हुआ था। Although they were quick, once they were out of the cave, they could not follow Perseus because he flew away on his winged sandals and left them far behind. अब वो काफ़ी तेज़ थी गॉर्गन्स, लेकिन जैसे ही वो केव से बाहर निकली तो वो बेसिकली पर्सियस को फॉलो नहीं कर सकती थी। क्यों? क्योंकि पर्सियस ने जो सैंडल्स पहने हुए थे वो उसको उड़ा के ले गया। परचेस को उड़ा के वो सैंडल ले गए, ठीक है। और देयर वॉज नॉट द दिस वॉज नॉट द एंड ऑफ परसियस एडवेंचर, अब ये परसियस के एडवेंचर का अख्ताम नहीं था। ऑन द वे बैक होम एज ही फ्लू अलॉन्ग द कोस्ट ही सॉ अ यंग वुमन टाइड टू अ रॉक इन द सी, ही फ्लू डाउन टू फ्री हर, तो जैसे ही वो वापस जा रहा था अपने घर तो उसने क्या देखा कि किनारे के पास जो है ना एक लड़की जो है वो एक रॉक के साथ जो है सी में बंधी हुई है, तो वो बेसिकली नीचे फ्लाई डाउन करता है। ही फ्लू डाउन एंड टू फ्री है, उसको फ्री करने के लिए। नो यू मस्ट लीव मी, आई एम एंड्रोमेडा एंड आई मस्ट बी सेक्रीफाइस टू द सी सर्पेंट इन ऑर्डर टू स्टॉप हिम फ्रॉम अटैकिंग अवर पीपल। वो कहती नो नो नो, मुझे रहने दो, मेरा नाम एंड्रोमेडा है और बेसिकली मैं कुर्बानी दे रही हूँ अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि ये जो सर्पेंट है एक्चुअली सी सर्पेंट, ये कुर्बानी चाहता है मेरी, और फिर ये अगर मेरी कुर्बानी इसको मिल जाएगी तो ये हमारे लोगों को नहीं मारेगा। पर्सियस एडमायर्ड हर ब्रेवरी बट डिड नॉट वांट टू सी हर किल्ड, पर्सियस को बहुत अच्छा लगा, उसने उसकी इस दाद दी उसकी इस बहादुरी की, लेकिन वो नहीं चाह रहा था कि उसको देखे कि वो लड़की मर जाए, ठीक है। आई विल फाइट द मॉन्स्टर एंड सेव यू, ही प्रॉमिस, तो उसने कहा कि मैं इस मॉन्स्टर से फाइट करता हूँ और आपको बचा लूँगा। बी केयरफुल ब्रेव वन सेड एंड्रोमीडा, अब एंड्रोमीडा ने उसे गुड लक विश किया और उसने कहा कि बी केयरफुल। द सी सर्पेंट वॉज फिरोशियस एंड फॉट हार्ड, अब वो बहुत ज़्यादा एक एग्रेसिव था, ठीक है, वायलेंट था सी सर्पेंट, और उसने बहुत ज़्यादा जो है वो पर्सियस के साथ फाइट की। पर्सियस फ्लो इन एंड आउट ऑफ इट्स कॉइल्स एंड स्लाइस्ड एट इट विद ज़ोस सोर्ड, तो पर्सियस ने जो है वो, अब कॉइल्स आपको पता है कि जब ये गोल गोल होता है तो कॉइल सी शेप में आता है, तो ये बस पर्सियस क्या कर रहा था कि तलवार के साथ जो है वो इन एंड आउट फ्लाई कर रहा था और उसको हर्ट कर रहा था। द बैटल लास्टेड अ लॉन्ग टाइम until eventually the sea was red with the serpent's blood and it sank to its death beneath the waves। अब बैटल जो था वो काफ़ी देर तक चलता रहा, लेकिन एंड में क्या हुआ कि सी जो था वो पूरा रेड हो गया। क्यों? क्योंकि सर्पेंट का ब्लड वो था और सर्पेंट जो है वो मर के नीचे चला गया, लहरों के नीचे चला गया। Come with me, said Perseus to Andromeda, and she agreed. Back in Seriphos, King Polydectes was holding another banquet when Perseus strode through the door. Strode का मतलब होता है कि चलता हुआ आना, ठीक है। I have your gift, he announced. अब एंड्रोमीडा को वो ले गया वहाँ पे, और जैसे ही वो सिरोफस अपने आइलैंड वापस पहुँचा है तो उसने देखा कि पॉलीडेक्टिस जो है उसने एक दूसरा बैंक्वेट जो है वो होल्ड किया हुआ था, और पर्सियस जो है वो दरवाजे से अंदर आया और उसने कहा कि मेरे पास आपका गिफ्ट है। द किंग लाफ्ड डिसबिलीविंगली, अब किंग जो है वो ऊंचा ऊंचा हंस रहा था और उसको बेसिकली यकीन नहीं आता। शो मी, ही कमांड, उसने कहा मुझे दिखाओ। पर्सियस क्लोज्ड हिज आइज टाइटली एंड पुल्ड मेडूसाज हेड फ्रॉम द बैक, तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली पर्सियस ने और मेडूसा का सर जो है वो बैग से बाहर निकाल दिया। द किंग एंड एवरीवन इन हिज कोर्ट वर इंस्टेंटली टर्न्ड इनटू स्टोन, तो जो किंग और जितने भी उसके दरबार में लोग थे वो सारे के सारे पत्थर के बन गए। फ्रॉम देन ऑन सिरोफस वॉज रूल्ड बाय काइंड डिक्टेस, फिर उसके बाद से क्या हुआ कि जो आइलैंड ऑफ सिरोफस था उस पर हुकूमत जो थी पॉलीडिक्टिस का जो भाई था जो कि काइंड था, डिक्टेस, उसने संभाल ली।
Danae was happy to see Perseus home safely, and everyone celebrated when Perseus and Andromeda were married. तो बेसिकली उनकी मदर Perseus की बहुत ज़्यादा हैप्पी थी कि वो सेफली आ गया, और हर कोई जो है उसने सेलिब्रेट किया जब Perseus और Andromeda की यहाँ पे शादी होगी. ओके. लेकिन ये जो इमेज है बेसिकली दिस इज Perseus होल्डिंग Medusa's head, और ये सारे देखते हैं, दे इंस्टेंटली टर्न इनटू स्टोन्स. Okay, it's by Claire Hosberg, adapted from Greek mythology. Okay, so ये एक Claire Hosberg ने ली है, और ये basically Greek mythology की एक story है जो उन्होंने लिखी है. So I hope that everyone of you has understood it quite well, and inshallah just see this video, okay, understand what the lesson is all about, then you are supposed to read it by your own self as well. Okay, thank you. Allah Hafiz.